Hello and welcome back to my YouTube channel. So in the last two videos, I had configured IPsec over SD-WAN, right? So in first video, I had configured IPsec over SD-WAN from Mumbai to Delhi location, right? And in second video, I had discussed about IPsec over SD-WAN and configuration from Mumbai to Bangalore location, right? So in this video, what I'm going to show you, I am going to show you IPsec over SD-WAN configuration. I will not show you here IPsec over SD-WAN configuration. I will show you how to configure reachability from Delhi to Bangalore location, right? Right now, I don't have any direct tunnel from Delhi to Bangalore location. Only I have tunnel which I had created from Mumbai to Delhi location and Mumbai to Bangalore location. You can call it here Mumbai, which is the headquarter branch, right? And Delhi, which is branch one, right? And Bangalore, which is branch two, right? So I had reachability in the last two videos. I had reachability from Mumbai to Delhi location, right? And Mumbai to Bangalore location, right? So I did not have a reachability from Delhi to Bangalore location, right? Because here don't have direct tunnel, right? So in this video, what I'm going to show you, I'm going to show you the reachability from Delhi to Bangalore, right? The traffic will move first to Mumbai location, which is headquarter, right? Then traffic will move via tunnel to Bangalore location, right? Let's suppose the agenda of this video, like if we have a server, right, in the Bangalore location, right? So some of the user who are sitting in Delhi location, right? And you can call it, this is the FTP server which is located at Bangalore location. And Delhi user wants to access this Bangalore server, right? So how the connectivity will happen in this scenario? So let me show you. Let's move first to the Mumbai location, Mumbai firewall, and then Delhi, and then Bangalore. Before that, I would like to show you the connectivity, right? I will show you the connectivity from Mumbai to Delhi location by ping, right? And from Mumbai to Bangalore location, I will be able to ping, right? From Mumbai to Delhi and Delhi to Mumbai and Mumbai to Bangalore, Bangalore to Mumbai. But I will not able to ping from Delhi location to Bangalore location, right? Because we don't have any policy and static route and phase 2 selected traffic, right? So let's get started. So you can see this is the Mumbai location, which is the headquarter firewall, right? And this is the Delhi location firewall. So first of all, I would like to show you the tunnel. Right now, tunnel will be up, right? So as you can see here, all tunnels are up, right?
Okay, all tunnels are up. Let me show you the policy as well as this is the Bangalore location firewalls policy, and this is Delhi location firewalls policy, and this is the headquarter firewalls policy, right? So I would like to also show you the static route which I had configured. So this is the headquarter firewalls static route, and this is the Delhi location. Okay, this is the Bangalore location firewalls static route. So let's go to the lab, right? So यहाँ से मैं अगर पिंग करूँगा तो 192.168.2.10, राइट? सो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला मैं पिंग कर पा रहा हूँ फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम मुंबई से, राइट? मुंबई लोकेशन से। और फिर मैं इसको भी रीच कर पाऊंगा, राइट? जो यहाँ बेंगलोर लोकेशन में सर्वर है फ्रॉम मुंबई लोकेशन, राइट? 3.10। ओके, अगर मैं ट्रेस रूट करके देखूँ 192.2.10, राइट? अगर 3 डॉट करूँ तो रीचेबिलिटी है, राइट? और सेम मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इन 192.1.10, राइट? सो ये जो मेरा PC2 है ये दिल्ली लोकेशन पे है, राइट? और 3 डॉट को करूँगा तो नई रीचेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट टनल तो क्रिएट नहीं है, राइट? हमारा जो डायरेक्ट टनल क्रिएट हुआ है वो हेडक्वार्टर के साथ है, ब्रांच के साथ टनल क्रिएट नहीं हो रखा, राइट? तो ये 192.168.1.1, राइट? 3 डॉट को करूँगा तो ये नहीं होगा, राइट? रीचेबिलिटी नहीं हो रही है। यही मैं आपको बेंगलोर लोकेशन के सर्वर से दिखा दूँ, पिंग 192.168.1.10 को रीचेबिलिटी रहेगी क्योंकि डायरेक्ट टनल क्रिएट हो रखा है। 2.10 को करेगा तो नहीं होगा, राइट? अगर मैं ट्रेस रूट करके दिखाऊं आपको, पैकेट ड्रॉप होगा, राइट? यहाँ तो हेडक्वार्टर तक तो रीचेबिलिटी है बट बेंगलोर से दिल्ली लोकेशन के लिए नहीं है, राइट? तो अभी रिक्वायरमेंट का क्या है हमारी? अगर लेट सपोज हमारा ये सर्वर है, राइट, बेंगलोर लोकेशन पे है, और हमारा एक लोग लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट, अबाउट दिस टोपोलॉजी। सो ये जो मेरा मुंबई लोकेशन है ये हेडक्वार्टर ब्रांच है, राइट? ये हेडक्वार्टर ब्रांच है, और इसके दो ब्रांचेस अभी नई नई लेट सपोज ओपन हुई हैं, एक दिल्ली लोकेशन में है और एक बेंगलोर लोकेशन में, राइट? और ईच लोकेशन पे 40 गेट का फायरवॉल है,
राइट। और रिडंडेंसी के लिए हमारे पास दो दो लिंक है, राइट। एक यू कैन कॉल इट ISP1, राइट। ISP1 कर सकते हो। एक जो रिडंडेंसी के लिए है ISP2 है, राइट। सिमिलर सेटअप हमारा जो ISP का है वो ब्रांच लोकेशन पे भी है, यहाँ पे भी है, जो कि दिल्ली एंड बेंगलोर लोकेशन पे है, राइट। और इन ISP के साथ हमने क्या क्रिएट कर रखा है, हमने टनल क्रिएट कर रखा है। कौन सा टनल क्रिएट कर रखा है? IPsec और SD बैंड, राइट, इन साइट्स के बीच में। अभी हमारा जो रीचेबिलिटी है मुंबई से, रीचेबिलिटी हमारा दिल्ली लोकेशन के लिए और मुंबई से बेंगलोर लोकेशन के लिए है, वाइस वर्सा यू कैन कॉल इट। दिल्ली से हम रीच कर पा रहे हैं मुंबई लोकेशन के लिए, कोई भी सर्वर या किसी भी यूजर को कनेक्टिविटी रीच करना, रीच आउट करना है तो वो पैकेट सेंड और रिसीव कर रहा है, कोई फाइल ट्रांसफर कर पा रहा है, राइट। और सिमिलर सेटअप यहाँ पे बेंगलोर लोकेशन से है मुंबई लोकेशन तक, राइट। बट बट बेंगलोर से अभी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भाई, पिंग, राइट। क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट टनल क्रिएट हो रखा है, यहाँ से इस फायरवॉल के पास डायरेक्ट कोई टनल नहीं है। टनल जो क्रिएट हो रखा है वो मुंबई लोकेशन के साथ हो रखा है और मुंबई से दिल्ली लोकेशन के लिए हो रखा है, राइट। अभी हमारे कनेक्टिविटी क्या करनी है, हमें इस PC से इस सर्वर को एक्सेस करना है, यानी हमें दिल्ली लोकेशन से हमें बेंगलोर का सर्वर एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा स्टैटिक राउट पॉलिसी, क्रिएट करेंगे, मॉडिफिकेशन इन फेज 2 सिलेक्टर में करेंगे और नेट करेंगे। नेट हम कहाँ पे करेंगे? मुंबई लोकेशन के फायरवॉल पे करेंगे। और हम वेरिफिकेशन करेंगे यूजिंग स्नीफर कमांड के साथ, हम आपको वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे, यानी शो करेंगे। आई विल शो यू हाउ टू चेक द कनेक्टिविटी, राइट। यहाँ पे 3 मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। फेज 2 सिलेक्टर में या तो आप ऑल ऑल कर सकते हो, राइट, यहाँ पे, और यहाँ पे फेज 2 सिलेक्टर में इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जो प्रॉक्सी आईडी डिफाइन करते हैं, या तो वो कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, आप सबनेट डिफाइन कर सकते हो, राइट। सबनेट इन द सेंस नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो। और थर्ड क्या करोगे आप, यहाँ पे नेम्ड बेस्ड एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, राइट, इस पर। तो अभी हम जो करेंगे, हम यहाँ पे जो फेज 2 सिलेक्टर में 0 0 मीन्स ऑल ऑल सेलेक्ट कर देंगे, राइट। बट हम पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करेंगे कौन सा यूजर जो दिल्ली लोकेशन पे है इस सर्वर को एक्सेस करेगा, वो हम पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करेंगे, राइट। और यहाँ पे इस टनल पे हम करेंगे जो लोकल और रिमोट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, हम 0 0 करेंगे। उसके बाद हम नेट करेंगे। नेट के किस लिए करेंगे? ताकि हमें इस फायरवॉल पे हमें मॉडिफिकेशन ना करना पड़े, स्टैटिक राउट ना क्रिएट करना पड़े, और पॉलिसी ना क्रिएट करना पड़े, राइट। ये इस पे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट। ओनली हमें इस फायरवॉल का जो लैन इंटरफेस का सबनेट है उसको ही अलाउ करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट्स इट। इस फायरवॉल पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर यहाँ से आपको इसको एक्सेस करना है तब यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स गो टू द फायरवॉल फर्स्ट, एडमिन, एडमिन 1 2 3, एडमिन 1 2 3। तो वो अभी हमने बात किया, अभी हम दिल्ली के फायरवॉल पे चलते हैं, राइट। हमने क्या क्रिएट करना है, पहले हम इस फायरवॉल का जो PC है वो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे मैं पिंग 192.168.3.10, राइट, मैं इस सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। लेट मी शो यू।
ये PC3 का IP एड्रेस है। आप PC3 को सर्वर मान सकते हो, जो कि बेंगलोर लोकेशन में है, राइट। तो अभी इनकी कनेक्टिविटी नहीं है, राइट। तो अभी हम चलते हैं दिल्ली के फायरवॉल पे, राइट। सो दिल्ली के फायरवॉल, दिल्ली फायरवॉल, राइट, ब्रांच 1। तो अभी हम पहले स्टैटिक राउट ही क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टैटिक राउट क्रिएट करने के आप नेटवर्क में आओगे, स्टैटिक राउट में, राइट। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे क्या आप, जो VPN का। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, राइट। SD1 के 192.168.3.10, सॉरी 3.0/24। जिस नेटवर्क को एक्सेस करना है वो उसमें VPN इंटरफेस क्या करेंगे, हम SD1 को चूज करेंगे, राइट। एक मैं इसके लिए ब्लैक होल राउट बना देता हूँ, ताकि टनल डाउन जाए तो इसका रिक्वेस्ट इंटरनेट पे ना भेजे, अगर कोई पॉलिसी क्रिएट हो रखी हो। सॉरी, ब्लैक होल राउट क्रिएट करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, 192.168.3.0/24। इसकी जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में रखूंगा 220 से एबव रखूंगा, देन अदर्स, राइट। पॉलिसी ये क्रिएट होगा स्टैटिक राउट। अब इसके बाद मैं चलता हूँ पॉलिसी क्रिएट कर देता हूँ, राइट। पॉलिसी क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, IPv4 पॉलिसी, क्रिएट पॉलिसी, राइट। दिल्ली टू बेंगलोर सर्वर एक्सेस, right. Incoming interface, what will be here? LAN interface. Outgoing interface, I will choose tunnel interface. Source, I will use uh, Delhi, right. Delhi local subnet. Destination, what I will choose? I will choose 3 dot, right. Remote subnet, Bangalore subnet, right. You can see 3.0 सर्विस। अभी के लिए मैं ऑन कर देता हूँ, राइट। नेटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टनल पे ट्रैफिक भेज रहे हैं। ओके, राइट। बहुत चीज हो गई। नेक्स्ट बोर्ड चलते हैं हम VPN में, टनल में चलते हैं, IP से। अभी हमारे पास दो टनल है, तो अभी मैं आपको एक टनल में शो करके दिखा देता हूँ। मैं यही लोकल एड्रेस ऑल चूज कर लूंगा। यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं ऑल कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। मेरे पास एक और टनल है, बट इस पे भी मैं क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। मैं, मेरे पास एक ISP है, तो मैं उस पर अभी ऑल कर दिया, राइट। ये हो गया। अब मैं आपको ये ट्रैफिक जो आप मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट। ट्रबल शूटिंग मेथड, डायग्नोस। दिल्ली के फायरवॉल पे चलते हैं, तो डायग्नोस स्नीफर पैकेट एनी होस्ट 192.168.3.10, राइट। एंड ICMP4। तो यहाँ पे आप देखोगे रिक्वेस्ट आ रही होगी, राइट। सो एज यू कैन सी दैट 192.168.10, राइट, एंड 192.168.3.10, राइट। जो दिल्ली का कोई यूजर है, राइट, वो रीच आउट कर रहा है बेंगलोर लोकेशन के सर्वर को, राइट। तो ICMP को रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, राइट। सो यहाँ पे रिचुअलिटी हो गई। सिमिलर हम चलते हैं हेडक्वार्टर के फायरवॉल पे, राइट, जहाँ पे हमने टनल क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे भी मैं पहले आपको डायग्नोस स्नीफर से चेक करा देता हूँ कि रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है कि नहीं। डायग्नोस स्नीफर पैकेट एनी होस्ट 192.168.2.10, एंड ICMP4। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट आ रही है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, टनल से आ रही है, राइट। वो टनल टनल कौन सा, हमारा हेडक्वार्टर टू दिल्ली वाला जो टनल 1 क्रिएट किया है उससे आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या चले करेंगे, सिमिलर हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं स्नीफर कमांड बेंगलोर लोकेशन पे, यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है कि नहीं, राइट। तो ये बेंगलोर लोकेशन पे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट। बट हमें सोर्स में अलाउ करना पड़ेगा जो हेडक्वार्टर का सबनेट है, डायग्नोज स्नीपर पैकेट
एनी एंड पोस्ट, राइट, एनी कर देते हैं, राइट, एनी क्या करते हैं, आईसीएमपी को कर देते हैं, राइट, इससे पता चल जाएगा किससे रिक्वेस्ट आ रही है। तो अभी बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है, राइट, अभी तो हमें 2.10 का रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.10 की रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, राइट। तो इसके लिए हम चलते हैं इस फायरवॉल पे, हेडक्वार्टर पे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फर्स्ट स्टैटिक राउट। सो पहले चेक करते हैं कि हमारे पास स्टैटिक राउट है बेंगलोर लोकेशन के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी होगी क्योंकि इसके साथ टनल क्रिएट हो रखा है, राइट। तो ये आ जाओ, 3.10 जो हेडक्वार्टर मुंबई का फायरवॉल है, 3.0 के लिए स्टैटिक राउट क्रिएट हो रखा है, राइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे क्रिएट करते हैं दिल्ली टू बेंगलोर सर्वर एक्सेस वाया टनल, राइट। इनकमिंग इंटरफेस, यहाँ वीपीएन का इंटरफेस होगा, क्योंकि टनल इंटरफेस होगा क्योंकि जो हमारी ट्रैफिक आ रही है टनल के थ्रू आ रही है। और आउटगोइंग इंटरफेस वही होगा, टनल का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे हमने जोन के SD1 का कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है जोन में। तो यहाँ पे हम जोन चूज करेंगे और सोर्स में हम यूज करेंगे दिल्ली का सबनेट, राइट। तो दिल्ली का सबनेट हमारा 2.0 हो गया। और डेस्टिनेशन हमें कहाँ है, बेंगलोर का 3 डॉट को एक्सेस करना है। सर्विस अभी मैं ऑल कर देता हूँ। नेट, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि नेट के थ्रू हम ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे। तो नेट के लिए हम एक पूल क्रिएट करेंगे, राइट। पूल क्रिएट करेंगे, तो पूल क्रिएट करने के लिए मैं ओवरलोड का यूज कर ले रहा हूँ। तो बेंगलोर ओवरलोड दिल्ली टू बेंगलोर डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं 192.168 192.168 110 मैं 10 IP यूज कर रहा हूँ जो कि मेरा लैन सबनेट का है, राइट। यहाँ पे मैं ओके कर दे रहा हूँ। जो ट्रैफिक फॉरवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ से जो रीचेबिलिटी है, आई मीन यहाँ से हमारी रीचेबिलिटी मुंबई से तो इस लोकेशन के लिए है ही है। बट जो हमारी ट्रैफिक अभी आ रही है यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इस बेंगलोर फायरवॉल पे मुझे कोई स्टैटिक राउट वगैरह, VPN वगैरह, अदर सेटिंग ना करना पड़े, स्टैटिक राउट पॉलिसी वगैरह। मैं ओनली फायरवॉल इस पे क्रिएट कर दूंगा हेडक्वार्टर पे, तो यहाँ से ट्रैफिक हो जाएगी टनल के थ्रू यहाँ पे, राइट। बस मेरा इंटेंशन ये है, राइट। तो नेट कर दिया ओवरलोड, ओके कर दिया, राइट। अब फेज 2 सिलेक्टर में चलता हूँ। फेज 2 सिलेक्टर, फेज 2 सिलेक्टर में आप आओगे, VPN में IP शिफ्ट टनल में आओगे, राइट। ये दिल्ली टू हेडक्वार्टर टू दिल्ली टनल 1 में है, राइट। यहाँ पे आ जाओगे, आप ऑल सिलेक्ट कर दो, राइट। यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हो, राइट, कौन सा लोकल एड्रेस एंड सोर्स है, रिमोट एड्रेस। सो ये चीज़ें मेरी हो गई। अब हम चलते हैं, अब चेक करते हैं हमारी रिचेबिलिटी हो गई, रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी टाइम आउट आ रहा था, अभी रिक्वेस्ट सेंड होने लगी। और यहाँ पे आप देखोगे ICMP को रिक्वेस्ट एंड ICMP को रिप्लाई मिलने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ICMP को रिक्वेस्ट, ICMP को रिप्लाई 3.10 से मिल रहा है। आप सिमिलर आ जाओ यहाँ पे, डायग्नोस सिल्वर पैकेट एनी, सिल्वर पैकेट एनी होस्ट 192.168.3.10 एंड ICMP फोर। तो आप देखोगे यहाँ ICMP को रिक्वेस्ट, ICMP को रिप्लाई आएगा, राइट। ओके, सॉरी,
यहाँ पे 10 डालना, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्लाई जा रहा है हमें। आप आ जाओ बेंगलोर फायरवॉल पे। तो यहाँ पे पहले देख देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ी, राइट। यहाँ पे आओगे आप, फॉरवर्डिंग में आ जाओगे। इसको कौन कौन एक्सेस कर रहा है? जो नेटिंग हो रही है 192.168.1.102 को कर रहा है। सोर्स ये लग के आ रहा है जो नेट होकर के आ रहा है। यहाँ पे आप आ जाओ, नेटिंग आपको देखना है तो फॉरवर्डिंग लॉग पे आ जाओ, राइट। जस्ट अ सेकेंड। Now you can see here, right? Source IP address is 192.168.2.10 and net IP is this IP is being translated into 192.168 to 1.102, right? So that's how you can access remote site, right? If you have any query, so you can reach out to me by doing comment, right? So thank you for watching this video till the end.